आपके कोई assumptions to carry out our research, we need to have some of the hypothesis. उन hypothesis को maintain करने के बाद हमें जाना होता है अपने research process पर. Research process का basically meaning क्या? Research process basically is a step-by-step procedure. You can also read from the side. It is a systematically investing a problem through some research process. Okay, it includes steps necessary to carry out the research and desired sequencing of given steps. Am I audible to you all? You people write in the chat. I'm not able to understand whether you people are sitting in the class or not. So kindly write yes or no, those who are sitting and listening to me. Others may keep mum. Okay, interrupt me wherever you feel like to repeat the things. As we are having this online class after a long gap. Okay, it is basically similar to undertaking a journey. ऐसे क्यों लिखा है कि research process एक journey है? Because we are exploring so many things. जब आप लोगों की research या persons, those who are involved, हम लोग बात करते हैं हमेशा theoretical research की जो हम books में record कर रहे हैं. There's sometimes the person are exploring the nature, which is sometimes person is traveling to one country to another and surveying the food habits of the people. ठीक है? So it also involves the process of the journey when one person is moving from one place to another. Moving ahead, the research process is a very similar to undertaking journey. As with your drive for a research journey, there are also two important decisions to make. First, क्या है? You want to find out about, or in other words, research question you want to find answers to. आपको अपने questions भी खुद search करने हैं और आपको अपने answers भी खुद search करने हैं. This is basically the research. हमने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया अभी क्वेश्चन बैंक में, उसमें आप लोगों ने रिसर्च प्रॉब्लम भी डिफाइन करनी है, डिसीजन प्रॉब्लम भी डिफाइन करनी है, द फोर्थ क्वेश्चन, और आपको उसके रिसर्च ऑब्जेक्टिव भी बताने हैं. क्यों? क्योंकि यू आर अबाउट टू फाइंड द सॉल्यूशंस टू दैट. हैविंग डिसाइडेड अपॉन योर रिसर्च क्वेश्चंस और रिसर्च प्रॉब्लम, वो डिसाइड करने के बाद you need to decide how to go about finding their answers. The part of finding to your research constitutes your research methodology. हमने फर्स्ट क्लास में भी बात की थी. Learning the methods and the technique is basically your research methodology. Moving to the steps of the research process now, you can easily identify here that the first one is the problem identification. So what could be the problem identification? Just write in the chat what you understand by problem identification. क्या है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन? वेटिंग फॉर द रिप्लाई. जल्दी बताइए प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब है आपकी. एवरीबडी इज रिक्वायर्ड टू राइट. पहले भी सिर्फ 5 स्टूडेंट ने मार्क किया है, दिव्या, रिफान, सुमनजी, साहिल, गरिमा, आदित्य, पारस. तो बेसिकली मुझे उनकी अटेंडेंस मार्क करनी है, बाकियों की नहीं. टू नो व्हाट प्रॉब्लम वी आर फेसिंग. यस, फर्स्ट कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है. और कुछ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब है? जब हम बात कर रहे हैं, हमने रिसर्च प्रॉब्लम आपको दी और आपने डिसीजन प्रॉब्लम डिफाइन करनी है. To define your research problem, to find out what is your area defined, आप किस एरिया में अपनी रिसर्च करना चाह रहे हैं, आप क्या किसकी डीप इनसाइट्स को स्टडी करना चाह रहे हैं. It is basically giving the proper direction for carrying out the investigation and basis for the other steps. जब तक मुझे डिसीजन प्रॉब्लम या रिसर्च प्रॉब्लम का नहीं पता होगा, मीन जब तक मुझे मेरा कंसेप्ट नहीं पता होगा, दैट इज माय प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, उस प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन को नैरो करने के लिए जब तक मुझे अपना कंस्ट्रक्ट नहीं पता होगा, आई वुड नॉट बी एबल टू मूव टू दिस सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेप्स. ठीक है,
research must identify the research problems that need to be explained, studied and resolved. The accuracy and conciseness of the problem definition can be help in effective utilization of resources in context. देखिए जब तक हम बात करते हैं कि हमें हर चीज प्लानिंग के हिसाब से करनी है, ठीक है, जब तक मुझे यही नहीं पता मुझे रिसर्च में स्टडी क्या करनी है, कल मैंने आप लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस किया, आपको यही नहीं पता, मान लीजिए कि मुझे डिसीजन प्रॉब्लम में लिखना क्या है, तो आप उसके ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स नहीं बना पाएंगे तो हाइपोथेसिस कैसे होगा, हाइपोथेसिस के बाद हमने आरएम लैब में डिस्कस की कि हमें कोरिलेशन, मीन, मोड, मीडियन निकालना है, वो हम किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे ना कि मुझे इसमें मीन निकालना है, मोड निकालना है या मुझे कोरिलेशन निकालना है. As you know, mean will tell what is the central value. Mode will tell which is having the highest frequency. ठीक है? That's what. ठीक है? So that what your problem identification means. Anybody would like to add? आप लोगों ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, कोई भी एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके बताएंगे व्हाट इज द बेसिक रिसर्च यू आर गोना टू डू. अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलना चाहूँ, उसी के हिसाब से मैं फर्दर प्रोसेसेस पे मूव करना चाहूँ, just make it fast. Write in the chat. Except Sahil, others may write. And except those who have written still. Attendance mark करवानी तो ठीक है, otherwise it's okay. I'll mark the attendance of these students only. हम एडवर्टाइजिंग नहीं है? I'm waiting for the answers. Some of the example of the research problem. मुझे तो लगता नहीं आप एक भी क्वेश्चन उठा लेते हैं क्वेश्चन बैंक का और मेरी रिसर्च प्रॉब्लम ही थी. Isn't it? Okay, let's have a look. मैनेजमेंट की डिसीजन प्रॉब्लम और बिजनेस रिसर्च प्रॉब्लम ये भी कह सकते हैं, इसको डिसीजन प्रॉब्लम और इसको रिसर्च प्रॉब्लम ये भी कह सकते हैं. जब हम बात कर रहे हैं डिसीजन प्रॉब्लम क्या है और उसकी मुझे बिजनेस रिसर्च प्रॉब्लम लिखनी है, आई कुड मार्क दिस. शुड द डिविडेंड पे आउट बी डिक्रीज्ड. डिविडेंड का पे आउट मतलब डिविडेंड पे आउट. डिविडेंड पे आउट क्या होता है? ओके, इफेक्टिव फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग सो एज टू मैक्सिमाइज रिटर्न्स और टू मिनिमाइज कॉस्ट, टू मैक्सिमाइज सेल्स. ओके, वन. ओके, डिविडेंड पे आउट का मतलब लिखेंगे अब. डिविडेंड पे आउट का मीनिंग क्या होता है? डिविडेंड पे आउट. पे आउट, व्हाट इज यू मीन बाय डिविडेंड पे आउट? Yes or no? Whether you know this or not, or you are writing the answer. नहीं पता तो no लिख दीजिए बच्चे. Shareholders को dividend देना. Shobhit, you can directly message on the group also. Yes, payout means the paying ratio. आप कितना परसेंट उनको पे करेंगे, हमने बात कर रखी है, आप लोगों ने सबने पढ़ा है कि डिविडेंड्स में आपको कितना रिटेन करना है, कितना पे करना है. दैट इज योर पे आउट रेशियो. ठीक है, जितने प्रॉफिट्स होंगे उसका 100% देना है, 10% देना है, 20 देना है, वो होता है आपका पे आउट. तो आपका प्रॉब्लम है पे आउट रेशियो को डिक्रीज करना चाहिए. इसके लिए आपने क्या स्टडी कर रहे हैं कि आपका इम्पैक्ट क्या होता है डिविडेंड रिडक्शन का. अगर आप इसको रिड्यूस कर दें, उससे शेयर होल्डर्स की परसेप्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, शेयर होल्डर्स के आपकी कंपनी में इन्वेस्ट में क्या इफेक्ट पड़ेगा. यस, डिविडेंड पेड टू द शेयर होल्डर यूजुअली इन द परसेंटेज. यस. दूसरी अगर डिसीजन प्रॉब्लम आपकी ये है कि कस्टमर्स आर शिफ्टिंग टू कंपीटिंग ब्रांड्स, आपको ये प्रॉब्लम नजर आ रही है. ठीक है, अब इस प्रॉब्लम के लिए आपको बेसिक अपनी बिजनेस रिसर्च प्रॉब्लम क्या बनानी है. ठीक है, आप अपने ऐसे प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर रहे हैं विच आर प्रेफर्ड बाय कंज्यूमर्स. ठीक है, कस्टमर शिफ्ट कर रहे हैं, सो यू आर स्टडिंग योर प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स. इसका ये भी हो सकता था आई एम जस्ट कंपेयरिंग माय प्रोडक्ट विद द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट. इस चीज को स्टडी करने के लिए देयर कुड बी द नंबर ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. मैं अगर स्टडी कर रही हूँ प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स, मेरे क्वेश्चन उस हिसाब से होंगे और ऑब्जेक्टिव उस हिसाब से होंगे, अदरवाइज इट वुड बी इन द अनदर वे. नेक्स्ट है, शुड वी इन्वेस्ट इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं. इस डिसीजन प्रॉब्लम के लिए बिजनेस रिसर्च प्रॉब्लम है
टू ड्रॉ द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आपने एक कॉम्पिटिटिव चार्ट क्रिएट किया है और कंपैरेटिव चार्ट क्रिएट किया है टू अंडरस्टैंड कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कौन कौन सी कंपनी है, किसकी क्या टर्नओवर है, किसकी क्या डिविडेंड है, किसकी मार्केट प्राइस क्या है, वो सारी, ठीक है। उससे हमें पता चलेगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। Another is many employees come late to the office, should I change working hours? ठीक है, तो बेसिकली आपको स्टडी करना है रीजन बिहाइंड द एम्प्लॉइज कमिंग लेट टू द ऑफिस। जब आपको वो पता चल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको वर्किंग आवर्स चेंज करने चाहिए या नहीं, अगर उसका बेसिक रीजन वर्किंग आवर्स भी है तो। Hopefully clear. In case you want to interrupt, you want to repeat anything, right? Yes or no? लिख दीजिए, yes or no तो बता ही सकते हैं, इसमें तो कुछ आंसर नहीं है। जिन लोगों ने अभी तक रिप्लाई नहीं किया वो लिख दें एक बार, yes or no. Should I move forward or not? Should I repeat? Yes or repeat? मुझे ऐसे करोगे तो मैं बिल्कुल अटेंडेंस नहीं दूंगी। अभी तो हर वीक एक ऑनलाइन क्लास होगी। yes no लिखने में भी इतने देर लगे अगर आपको। no. Okay, those who are saying no, so what top point I need to repeat? No का मतलब तो यही था ना, अगर आपने सुना हो तो। yes मतलब I should move forward, no मतलब I must not move forward। तो कौन सा पॉइंट मुझे रिपीट करना है? देखा, आप लोग ये भी नहीं सुनते कि yes लिखना है या no लिखना है। 2-3 बच्चों ने तो अपने आंसर चेंज कर लिए। गुड, ओके। आपने फर्स्ट अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी है, उसके बाद है डेवलपिंग एन अप्रोच टू द प्रॉब्लम। आप किस तरह से इस प्रॉब्लम के लिए मूव आउट करेंगे। फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन बैंक में है उसमें आपको ये 6 स्टेप्स देने हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से आपको एग्जांपल ऑलरेडी दिया हुआ है, उसके एक्सप्लेन करने हैं प्रोसेस। ये मैं बात कर रही थी आप लोगों के साथ कि क्वेश्चन बैंक में आपको ये करना है। चलिए आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट है डेवलपिंग एन अप्रोच। हम क्या अप्रोच बनाएंगे? अप्रोच बनाने के लिए बेसिकली आपको करना है लेआउट तैयार, एक डिसीजन ट्री तैयार, ठीक है। आपको अपने प्री ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना है कि क्या क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या क्या आप अपने वेरिएबल्स लेंगे, ठीक है। सो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन मींस द आउटलाइन, basically dividing your problem into small significant pieces to identify the critical issues, structure provide करना so that salient issues could be addressed, literature review करना, ठीक है, to get the deep insights about the research problem। देखिए किसी भी प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, जितनी भी हिस्ट्री और एग्जिस्टिंग रिसर्च अवेलेबल होती है, ठीक है। मान लीजिए मैं आप लोगों को हर बार कह देती हूँ कि आपको एक स्टडी करना है, आपके गूगल पे बहुत सी चीजें अवेलेबल होती है। लाइक जब भी एक पर्सन को कुछ रिसर्च स्टडी करनी है, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन सेल्स। जब मैं क्वेश्चन करना है कि मुझे एडवर्टाइजिंग के मोड्स डिफाइन करने हैं फार्मलैंड मैन्युफैक्चर के, तो मुझे क्या, मैंने रिसर्च प्रॉब्लम बनाई, मुझे इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग का देखना है सेल्स पर, ठीक है। इसके लिए मेरे पास बहुत से आर्टिकल्स अवेलेबल होंगे। मैं डायरेक्टली उन आर्टिकल्स पे जाना चाहती हूँ, आई कुड ऑल्सो गो फॉर पीडीएफ, डॉट पीडीएफ, ठीक है। दिस इज अ पार्ट ऑफ द लैब वर्क ऑल्सो। आई एम टेलिंग, अगर आपको कोई भी लिटरेचर रिव्यू सर्च करना है, you must use the word dot pdf। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं उनके फुल टेक्स्ट अवेलेबल है या नहीं है, डॉट पीडीएफ डाल देंगे तो जो पीडीएफ अवेलेबल होंगी, जैसे अब यहाँ पर मुझे अभी कोई पीडीएफ नहीं नजर आ रही है, विच कुड ओपन, सारे लिंक्स मिल रहे हैं, ठीक है। या आप चाहें तो क्या करें, गूगल में जाइए, लिटरेचर रिव्यू के लिए गूगल स्कॉलर, गूगल स्कॉलर की अपनी टर्म्स है जिसमें सारे रिसर्च पेपर्स हैं। इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन सेल्स, जब मैंने उसको फाइंड किया, मतलब मैं उसका लिटरेचर रिव्यू स्टडी कर रही हूँ, तो मुझे ना बहुत से पेपर मिलेंगे। कंपटीशन एज ए मॉडरेटर, मतलब आपको पता चल रहा है किसी ने एडवर्टाइजिंग और सेल्स के बीच, सॉरी एक मिनट, ये इंफॉर्मेशन आ जाती हैं जब
आपके पास उस पेपर का एक्सेस नहीं होता एक्सेप्ट ऑल। ओके, कंपटीशन एज ए मॉडरेटर ऑफ इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन सेल। बेसिकली आपको पता चल रहा है एडवर्टाइजिंग और सेल्स पे इम्पैक्ट देखा हुआ है और उसका मॉडरेटर वेरिएबल क्या है, कंपटीशन। क्या कंपटीशन का एडवर्टाइजिंग सेल्स पे इफेक्ट पड़ता है? आपको कुछ कुछ एब्स्ट्रैक्ट्स तो मिल ही जाते हैं, मतलब उसने अपने पेपर में क्या स्टडी करा। ठीक है, देखो हम लॉन्ग स्टडी करना चाहें, लिटरेचर रिव्यू बहुत इंटेंसली स्टडी करना चाहें मुझे पूरे पेपर्स चाहिए। अभी आपके स्टेज पे आप लोगों को अगर जैसे ये देखिए, ये है इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। लिटरेचर रिव्यू का मतलब है जब मैंने एक प्रॉब्लम डिफाइन कर ली, ठीक है, जब मैं एक प्रॉब्लम को डिफाइन कर रही हूँ उसके बाद मुझे पता होना चाहिए मुझे उसके लिए कौन से वेरिएबल्स लेने हैं। वेरिएबल्स कहाँ से आएंगे? जब मैं कुछ स्टडी करूंगी उसके पेपर्स। अभी मुझे इससे पता चला कि कंपटीशन को मैं एज ए मॉडरेटर भी ले सकती हूँ, एज ए इंडिपेंडेंट भी। यहाँ से मुझे पता चला मैं सेल्स को भी डिपेंडेंट वेरिएबल ले सकती हूँ और प्रॉफिटेबिलिटी को भी ले सकती हूँ। और मैं डीप इनसाइट इनको पढ़ूंगी तो पता चलेगा इन्होंने एडवर्टाइजिंग के लिए इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग को किस किस पैरामीटर्स में स्टडी करा। जैसे मैं जाऊं एक बार, यहाँ देखिए इन्होंने मॉडल में लिया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टर्नओवर, अर्निंग पर शेयर। ये सेल्स पर जब इफेक्ट देख रहे हैं तो इन्होंने ये पैरामीटर्स लिए। वाई आपकी है इन्वेंट्री, x1 x2 x3 है अर्निंग पर शेयर, मतलब ये सारे हो गए आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हो गए डिपेंडेंट। तो जब हम ऐसे स्टडी करते हैं, अब ये देखिए ये जो आंसर्स हैं ये सारे एसपीएसएस में निकले हुए हैं। दिस इज व्हाट द रिग्रेशन। ये सारे रिग्रेशन की टेबल है जो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ चेक कर रखा है। यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के साथ है, यहाँ कुछ अलग है, यहाँ टर्नओवर का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये भी है, ये यूएसी कंपनी का है, ये यूनिलीवर कंपनी का है, ये नाइजीरिया कंपनी का है, या मे एंड ब्रेकर का है। सो दे हैव टेकन द डिफरेंट कंपनीज। तो आपको पता चलता है लिटरेचर रिव्यू करने से कि मुझे कौन सी स्टडी को कैसे स्टडी करना चाहिए। अब एक और पेपर मिल रहा है इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन सेल्स वॉल्यूम ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, अब उधर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंसीडर हुआ था, अगर इसको हम पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ देखिए अगर मैं ओवरव्यू देखूं, देखिए इन्होंने जेंडर भी लिया है तो ये जेंडर का इफेक्ट भी देख रहे हैं। ये आपकी क्रॉस स्टेप देखो बनी हुई है, जैसे हमने क्रॉस स्टेप बनाई थी। कहीं लग रहा है आई एम गोइंग फास्ट, जस्ट इंटरप्ट मी। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ देखिए बच्चे, देखिए ये इतना बड़ा क्वेश्चनर है। हमने एडवर्टाइजिंग, हमने सॉरी कस्टमर सर्वे पे था। जब आप कहते हैं मुझे कौन से डेमोग्राफिक वेरिएबल लेने चाहिए, तो अब उस टाइम जब हम डिस्कस करते हैं हमें नहीं याद आते। यहाँ पर जेंडर है, सेक्स, एज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन, मैरिटल स्टेटस भी है, डेजिग्नेशन पूछ सकते हैं डिपेंडिंग अगर आप ऑक्यूपेशन पूछ रहे हैं, क्वालिफिकेशन पूछ सकते हैं, ये हमने भी बात की थी। किसी कंपनी का स्टेटस है, किसी की सेटिस्फेक्शन स्टडी करें तो ईयर स्पेंड, रिलीजन, उसके बाद एडवर्टाइजिंग का इफेक्ट कितना है, मोस्ट एडवर्टाइजिंग का रेट क्या है। तो इन्होंने क्या पैरामीटर लिए? स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, अनडिसाइडेड, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। तो सी दे आर अराउंड 30 क्वेश्चन। सो व्हेनेवर आई एम डिफाइनिंग माय प्रॉब्लम, तो मुझे क्वेश्चंस खुद नहीं सोचने होते, मुझे क्वेश्चंस कहाँ से निकालने होते हैं? अपनी पुराने जो लोग उस पर स्टडी कर चुके हैं। अब इन्होंने किया है एडवर्टाइजिंग का सेल्स और ब्रांड शेयर्स पर। ठीक है, अगर मुझे ये भी नहीं पता हो ना, मान लीजिए सिर्फ मुझे ये पता है कि ये कम लेट आते हैं तो इसकी क्या प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए मैं ये जाके कॉपी पेस्ट करूं कि मेरी डिसीजन प्रॉब्लम ये है। ठीक है, 12 टिप्स टू हैंडल एम्प्लॉइज हु आर लेट। तो मुझे ये व्हाट डू व्हेन एम्प्लॉय शोज लेट, तो उस केसेस में ऐसे भी मुझे पता चलेगा मुझे क्या पढ़ना चाहिए। मुझे उनकी शिफ्ट स्टडी करनी चाहिए, मुझे उनके फैक्टर स्टडी करने चाहिए। ऐसे मुझे अपनी डिसीजन प्रॉब्लम के लिए भी लिटरेचर रिव्यू करना चाहिए ताकि मुझे पता चल सके कि हमें क्या क्या वेरिएबल्स और क्या क्या फैक्टर्स लेने होते हैं। कमिंग बैक टू योर नेक्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई कर लिया अप्रोच को, मतलब कंसेप्ट हो गया। कंस्ट्रक्ट करने के लिए, नैरो डाउन करने के लिए लिटरेचर रिव्यू करिए। ठीक है, उसके बाद करिए रिसर्च डिजाइन फॉर्मुलेशन। रिसर्च डिजाइन फॉर्मुलेशन का आपको डिफाइन करनी है अपनी टाइप ऑफ रिसर्च। ठीक है, आप कौन सी रिसर्च कर रहे हैं, प्योर अप्लाइड बेसिक,
जो मैंने आपको 4 कैटेगरी बताई हैं बच्चे, वैसे वो 4 टाइप्स ऑफ आपके रिसर्च डिजाइन होते हैं। कौन कौन से हैं 4 मेजर कैटेगरी ऑफ रिसर्च डिजाइन? प्लीज राइट इन द चैट 4 मेजर टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। कौन कौन से हमारे पास? मैं इसमें ऐड ही कर देती हूँ। फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव, अनदर इज आप लोगों को सबको पीपीटीज मिल गई हैं? आई थिंक मैंने कल शेयर कर दी थी। ओके, सो हियर वी हैव द नेम्स इन द चैट. So one is your descriptive, another is your exploratory. लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज भी हैं जो अभी तक हमने स्टडी नहीं करी हैं, जो इस यूनिट में भी है. विल डिस्कस इट आफ्टर योर दिस इंटरनल एग्जाम. डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी और डायग्नोस्टिक. आई ऑलवेज राइट डायग्नोस्टिक एट थर्ड. डायग्नोस्टिक. ठीक है, तो फाइंड करना कि आपने कौन सी रिसर्च करनी है, कौन सा टाइप्स ऑफ रिसर्च करना है. ये नहीं प्योर करनी है, अप्लाइड करनी है नंबर ऑफ, तो वो डिसाइड करना उसके क्या सैम्पलिंग होगी, टूल्स होंगे, वो सब. ठीक है, आप लोगों से हमने बात की थी. एवरीबॉडी इज अवेयर अबाउट यूनिवर्स, पॉपुलेशन एंड सैंपल. ठीक है, जब आप ये रिसर्च डिजाइन डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन लेना है, जिसको मैं आरडी लिख देती हूँ, उसके बाद मुझे डिफाइन करनी होती है अपनी सैम्पलिंग डिजाइन. ठीक है, सैम्पलिंग डिजाइन का मतलब है मैं डिसाइड करती हूँ कि टोटल मैं कहाँ पर ये सैंपल लूंगी, कितना सैंपल लूंगी, ओवरऑल यूनिवर्स कौन सी है, मतलब पूरी इंडिया है. ठीक है, इंडिया के एम्प्लॉइज हैं, इंश्योरेंस के एम्प्लॉइज हैं, आईटी के एम्प्लॉइज हैं, एडवर्टाइजिंग में कौन से हैं पर्सन, ऑनलाइन कंज्यूमर्स हैं, ऑफलाइन कंज्यूमर्स हैं, उसमें से मैं कौन से रीजन में उनको सेलेक्ट कर रही हूँ और कितने पर्टिकुलर किन को पिक कर रही हूँ, वो मेरा सैंपल हो जाता है. तो जब मैं एम डिसाइडिंग अबाउट द रिसर्च डिजाइन फॉर्मुलेशन, आई डू ऑल्सो हैव टू गो फॉर द टाइप्स ऑफ द रिसर्च डिजाइन एंड टाइप्स ऑफ द सैम्पलिंग डिजाइन. ठीक है, this is your research methodology. This is what comes in your research methodology. Next, the fourth step to move forward is your data collection. आपका डाटा 2 टाइप्स का हो सकता है. आपका डाटा होता है कौन कौन से टाइप्स का? आपका डाटा होता है, इधर होता है प्राइमरी और होता है सेकेंडरी. प्राइमरी डाटा का मतलब है आप खुद से सर्वे कर रहे हैं, आप क्वेश्चनर फिल करवा रहे हैं. ये आपने स्टैट्स में पढ़ा हुआ है. दोज हु हैव लर्न द क्यूटी इन द 11th 12th. कहने का मतलब है आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर्स को, आप देख रहे हैं आर्टिकल्स को. ठीक है, और क्या हो सकता है सेकेंडरी डाटा? देखो मैं गूगल सर्च कर रही हूँ तो जितनी भी रिपोर्ट्स इस पर मिलेंगी मुझे, ठीक है, इंटरनेट सोर्सेज, ई पेजेस, वेब पेजेस कह सकती हूँ, ये सारा मेरा क्या है? सेकेंडरी डाटा. और क्या हो सकता है सेकेंडरी डाटा? जस्ट राइट इन द चैट. इसके अलावा आपके पास क्या होता है सेकेंडरी डाटा? कौन सी रिपोर्ट्स होती हैं? कंपनी की रिपोर्ट जहाँ से हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलती हैं, एनुअल रिपोर्ट्स, आरबीआई की रिपोर्ट्स. यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. सेकेंडरी डाटा में और क्या हो सकता है? इसमें हो सकता है सर्वे, क्वेश्चनर, इंटरव्यूज हो सकता है पर्सनल में. जितने भी रिपोर्टर्स पर्सनल इंटरव्यू करते हैं वो हमारे प्राइमरी डाटा होता है. जो मैं डायरेक्टली ले रही हूँ वो प्राइमरी. सेकेंडरी में बताइए बच्चे और क्या क्या होता है? कॉलेज के लिए आपका सेकेंडरी डाटा क्या होता है? कॉलेज में आपकी लाइब्रेरी में क्या अवेलेबल होता है? लाइब्रेरी से क्या इशू कराते हैं? अच्छा, इसका मतलब सुन ही नहीं रहे हैं. बैक टू यस बुक्स. तो बुक्स आर योर सेकेंडरी डाटा, मैगजीन्स आर योर सेकेंडरी डाटा. ठीक है, सब चीजें वहां पर अवेलेबल है. आर्टिकल्स यस. ठीक है, तो ये सारी चीजें सेकेंडरी हैं जो पब्लिश में मुझे अवेलेबल है. ठीक है, मान लीजिए कोई लाइव न्यूज चल रही है, किसी ने बताया वहां पर अटैक हो गया, ठीक है, या वहां पर कंडीशन ये प्रिवेल कर रही है,
उसके बेसिस पे आपने फैक्ट्स फिगर निकाले। तो फर्स्ट यू हैव गॉन फॉर द सेकेंडरी एनालिसिस। जब न्यूज रिपोर्टिंग चलती है, जो पर्सन वहां पर लाइव वहां पर अवेलेबल होते हैं, बेसिकली दे आर डूइंग प्राइमरी डाटा। अगर मैं उनकी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ, फिर कुछ कर रही हूँ, तो मैंने सेकेंडरी डाटा यूज किया। ओके फाइन। मूविंग टू द डाटा कलेक्शन वी हैव डन। इसमें प्री टेस्टिंग और मेन कलेक्शन हो सकता है, आप पहले कुछ डाटा लें फिर कुछ डाटा लें, फर्दर यू गो मूव ऑन। डाटा कलेक्शन के बाद आपको अपने डाटा को प्रिपेयर और एनालाइज करना है। मतलब जब मैंने आप लोगों को कोडिंग सिखाई है एसपीएसएस में, तो मैं अपने डाटा को स्क्यूज कर रही हूँ। स्क्यूज कैसे कर रही हूँ? छोटा कर रही हूँ, डिफाइन कर रही हूँ। मेल इतना है, फीमेल इतना है, सर्वाइव इतने हैं, डाइड इतने हैं, ठीक है। क्रॉस टैब में उसको कोशिश कर रही हूँ कि वो जितना नैरो हो सके। सो रिप्रेजेंटिंग, सॉर्ट करना, एडिट करना, उनकी कोडिंग करना। कोडिंग में से कुछ मतलब अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए मुझे उसमें मेल फीमेल की नहीं चाहिए, कैटेगरी मैंने ले ली थी। ईमेल आईडी, अब जैसे उसमें नेम था, नेम की मुझे क्लीनिंग करनी है, मुझे नेम वाले वेरिएबल्स चाहिए नहीं, तो आई हैव जस्ट क्लीन दैट वेरिएबल। क्लीनिंग करना, फर्दर वेरीफाई करना, ये सारा आपका डाटा प्रिपरेशन एंड एनालिसिस है। डाटा को कलेक्ट करने के बाद जब आप उसको एनालिसिस करने के लिए मीन, मॉड, मीडियन, जो भी आप टेक्निक्स यूज करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए आप यूज करते हैं कोई भी टेक्निक्स। हमने ये वाली टेक्निक्स कर ली है, आपको याद हो हमने एसपीएसएस में फ्रीक्वेंसी एंड डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर लिया था। वो है आपका सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मल्टीवेरिएट एनालिसिस वो है जहां पर भी आपको क्या ऑप्शन मिलता है, जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, और जहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर मोर देन वन। तो जब मैं आपको कह रही थी, देखिए एनालाइज में जाइए, डिस्क्रिप्टिव में फ्रीक्वेंसी लीजिए, डिस्क्रिप्टिव लीजिए, ये सिंपल डाटा होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है। जब मैं आपको कहूंगी आप ऐसे करिए, ये रिलायबिलिटी अभी आपको मैंने बताया नहीं है, कोरिलेशन बताया ना। कोरिलेशन में बाइवेरिएट है, ओके, डाटा फाइल ओपन करनी पड़ेगी। कोई डाटा फाइल है मेरे में सेव? नहीं। देखिए मैं एक बार डमी डाटा डाल देती हूँ। चलिए अब आ जाएगा मेरे पास, ये आ गया, मैंने किया। ओके यहाँ पर कह रहा है, ठीक है, ये ऑप्शंस है, मीन लिया, एक्सक्लूड, कंटिन्यू, ओके। आपने एक चीज देखी, मैंने ना वेरिएबल्स के नेम नहीं डाले यहाँ पर बिल्कुल भी, तो यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली वेरिएबल्स ले लिए, मैंने डाटा डाल दिया। अब जब मुझे आंसर मिले तो मेरे पास टेबल ये आई, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3। अब क्या करना होगा, इसको कॉपी करूंगी, मान लीजिए अपने वर्ड में जाके पेस्ट करूंगी, फिर डालूंगी ये वेरिएबल कौन सा। यहाँ पर टेबुलर में नहीं आया, आपको एक्सेल में पेस्ट करनी पड़ेगी, फिर आ जाएगा। अगर एक्सेल में एज इट इज पेस्ट करेंगे या वर्ड में करेंगे तो प्रॉपर आ जाएगा, ठीक है। और इनके बॉर्डर्स ले लेंगे। तो मेरे को जाके क्या करना होगा, वेरिएबल को डिफाइन करना होगा, ये एज है, ये जेंडर है, ठीक है। इतने काम करने से पहले बेटर क्या है, आप क्या करेंगे, आपको क्या करना चाहिए इससे पहले, आपको सॉरी हम जा रहे थे एसपीएसएस टेबल पे, हमें क्या करना चाहिए, इन वेरिएबल्स के नेम डिफाइन कर देने चाहिए। हम बात कर रहे थे क्लीनिंग सॉर्टिंग। अब देखिए यहाँ पर आपको मिसिंग वैल्यूज नजर आ रही है, या तो इन मिसिंग वैल्यूज को कुछ दीजिए, यहाँ से कलेक्ट करेंगे, तो हमें इनकी क्लीनिंग करना, इनके नेम्स डालना, ठीक है। एनालाइज में जाके ऐसे वेरिएबल चूज करना, कोरिलेशन में मैं पार्शियल में गई, तो यहाँ पर मेरे को दो वेरिएबल दिख रहे हैं, एक मुझे यहाँ देना पड़ेगा, एक मुझे यहाँ देना पड़ेगा। तो इट विल इन्वॉल्व मल्टीवेरिएट एनालिसिस। जब मैं किसी वेरिएबल्स में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स नंबर ऑफ ले लेती हूँ, तो वो मल्टीवेरिएट एनालिसिस होता है। ये तो कह रहे पार्शियल कोरिलेशन होगा ही नहीं क्योंकि एनफ केसेस नहीं है, सो आई नीड टू मूव फॉर सम अदर केसेस। मेरे को डाटा और चाहिए, मैं चाहिए तो ऐसे प्रॉब्लम सब कुछ पता चल जाती है, एंड यू कैन ऐड ऑन सम मोर डाटा इन दैट, ठीक है। आ रहा समझ व्हाट आई हैव डिस्कस जस्ट, मैंने क्या स्टडी करा अभी एसपीएसएस में, मैं इसमें क्या बताने की कोशिश कर रही थी। इज इट क्लियर और नॉट? यू मे राइट यस और नो। हरी अप, राइट यस और नो, नो लिख दीजिए तो सो दैट आई कुड रिपीट।
सो गए दोबारा से सारे? नो लिख दीजिए ना, नहीं समझ आया तो। व्हाट इफ नो लिखने में कुछ है थोड़ा ना। यस लिख दीजिए समझ आ गया तो। एम आई ऑडिबल टू यू पीपल? ऐसी क्लास लेने का ना कोई फायदा नहीं है बच्चे, मैं सीरियसली बता रही हूँ। रिसर्च तो पढ़ो ही मत, ऐसे कोई फायदा नहीं है क्रैम करने का चीजों को। जब मुझे यस करवाने के लिए भी आप लोगों को नींद से 10 बार जगाना पड़ता है, उठो उठो यस लिखो। ओके, लास्ट चीज, लास्ट स्टेप इज रिपोर्ट राइटिंग। फर्स्ट क्लास में हमने बताया था जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं फर्दर लोग उसको यूज कर सके तो हम उनकी रिपोर्ट्स बनानी चाहिए, उन्हें रिटन फॉर्मेट में पब्लिश करना चाहिए। अपना हमने क्या ऑब्जेक्टिव लिया, मैंने क्या उसकी अप्रोच ली, ठीक है, मुझे रिसर्च डिजाइन क्या था, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, जो भी अभी आपने 5 स्टेप पढ़े हैं, ठीक है, उन सबको क्लियरली एड्रेस करना रिटन फॉर्म में, और आपकी क्या फाइंडिंग, कंक्लूजन और सजेशंस हैं वो देना। दैट इज योर रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन. This is all about your research process. Let me know in case you want to ask anything. Otherwise, I am just about to close this session. Done है? Okay, I am allowing you to unmute, but आप लोग तभी unmute करेंगे at your roll call, ठीक है? I am just having your attendance side by side. So जब आपकी roll call आएगी तब आप unmute करके मुझे बता देंगे. Okay, अगम, गर्वित, गौरव, अरुण, हिमांशी, पलक, पारस, जैन तक कौन है जो है बता दीजिए. है कोई? आपको अनम्यूट करना है बच्चे, मैं बार बार चैट नहीं चेक कर सकती, कोई है तो. आई वांट मार्क अगर आप अनम्यूट करके नहीं बोल सकते हैं तो. कोई चेक करके बताएगा यू आर एबल टू अनम्यूट और नॉट. अब देखिए, कुड यू पीपल अनम्यूट योरसेल्फ? यस मैम. ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए बच्चे प्लीज. म्यूट करिए अभी. ओके, फर्स्ट 5 में कौन है? मैम हिमांशी प्रेजेंट. ओके, नेक्स्ट अप टू 10 फॉरेस्ट चौहान तक. मैम पोरस चौहान. वेट जस्ट अ सेकंड, हैंग हो गई एक बार स्लाइड. Okay, I was doing on the wrong tab actually. RM. Okay. So Himanshi is there, Paras Jain is there, then पोरस चौहान. मैम पलक रस्तोगी also present. मैम मयूर आनंद. वेट करिए, 10 तक पूछा मैंने बस. पलक रस्तोगी, उसके बाद अप टू 10 कौन है? 1 to 10 में एनीबडी लेफ्ट? मूविंग फॉरवर्ड 11 to 15 प्रज्वल से प्रीतिश तक जो है. प्रज्वल डन. देन डन, नोबडी एल्स. अब 16 to 20 में मैम प्रियंका प्रेजेंट. डन. मैम साहिल काकू प्रेजेंट. यस डन साहिल. Okay, moving forward, 21 to 25 serial number, Saqib to Shefali. मैम समरजीत सिंह प्रेजेंट.
ओके, मूविंग फॉरवर्ड अप टू 30 सीरियल नंबर शिवांश शर्मा तक। मैम शिवम अरोड़ा प्रेजेंट। डन, अरोड़ा प्रेजेंट। मैम श्रीश नेगी प्रेजेंट। शाह है। शिरीष वेट करिए, 30 तक बात करिए, बी अटेंटिव इन द क्लास एटलीस्ट। इसमें कोई और है? शिवम अरोड़ा, शिवम शाह 30 तक जिनका रह गया हो। होपफुली यू आर सीइंग द स्लाइड। नहीं, यू नीड टू रिक्वायर्ड सिट हियर, अदरवाइज काउंट नहीं पता चलेंगे मुझे। ऐसा है तो आगे से नीचे से रोल कॉल शुरू करूंगी। शिरीष नेगी, उसके बाद 35 तक बताइए कौन है? शुभी शर्मा प्रेजेंट। शुभी शर्मा डन। मैम श्वेता प्रेजेंट। श्वेता यू मस्ट वेट, मैंने 35 तक गया। आप तो 40 बता दीजिए, कोई है तो। शुभित गोयल। शुभित गोयल कह रहे हैं? यस मैम। डन। सिमरन भाटिया प्रेजेंट। डन। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड अप टू 45 उदित त्यागी तक। कोई नहीं है 41 टू 45, ठीक है। 50 तक बता दीजिए, विभूति कोहली तक। मैं वंश शर्मा प्रेजेंट। मैं वंश शर्मा। वंश शर्मा, ओके डन। मैम सनप्रीत रह गया मैम प्रेजेंट। सनप्रीत क्या कर रहे थे अभी बच्चे? मैम मैं बोल रहा था वार नहीं जा रही थी। अच्छा चलिए कोई नहीं। सनप्रीत डन, वंश शर्मा डन, शर्मा डन, सॉरी शर्मा है ना। ओके, नेक्स्ट आ जाइए अप टू 55 तक, यश शर्मा तक। मैम विशेष प्रेजेंट। डन, ओके। उसके बाद आ जाइए अप टू 60 आदित्य दे तक। आदित्य आई थिंक ही वाज देयर। आदित्य मैम। या और कोई? 99 तक बता दीजिए, कोई है तो। ओके, 19 स्टूडेंट्स फ्रॉम द बी सेक्शन। अच्छा यही रह। हाँ जी मैम शुभम शर्मा सेक्शन बी। शुभम शर्मा आपने बताया था शायद। अच्छा शुभम, बच्चे टाइमली, अभी कोई लीव नहीं करेगा बच्चे, ऐसे काउंट बिगड़ जाएगा। कोई 2 बच्चे जा रहे हैं और कोई आएंगे तो फिर लॉक कर